Hello all. Today we are going to start with SQL query language. Till now we have run the query using design view. Okay, so in design view what we used to do is there was a table in which we goes and there was a table which is known as field table, field properties, and after that we used to click figures. This we will get after clicking on the query, and this one was the design view in which we used to add the table and close that, and after that whatever the query we want we just write over here. Now there is one more view in which you create the query through SQL. SQL is standard query language. To show you that I'm just deleting this query, that how it works. See, first of all you have to click on create, then click on query design, then close the show table. Okay, remember, close the show table. You can close it from here and from here, both. So you have to close the show table. After closing the show table you have to click on the query tab, and here you can see there is an SQL view written over here just after the design view. Just click on the design view. So this is what you get when you run a query in an SQL view. In SQL view, select and colon, these are two things which you get once you start writing or once you start with the SQL view. Okay, select is for the, you can say select is just a starting point. This is the first word with which you start your SQL query, and semicolon is the ending point. You cannot close your query of SQL until or unless you use semicolon. Okay, so this is how I just showed you that how to open a SQL query in MS Access. Now what are the different queries we are going to learn in SQL? Just let's I'm going to give you a brief overview of the SQL theory over here. See, SQL is basically a standard query language where you can insert, update and modify data, whatever we used to do in the design view sheet. After that, in SQL commands you can see there are few categories of SQL command, which includes DDL, DML and DCL. Okay, now first one is your DDL. DDL is basically language which is used to create, alter and drop. Drop means delete, means in case you are going to create table, you are going to alter the data or table, or delete the content, that in that case you are going to use DDL language. Next one is your DML. DML stands for select, insert, update, delete of records within the table. Okay, within the table means one table you are getting, and in that table only you are going to make the changes. Next one is your data control language. In this in this you are going to grant permission or revoke some permission related to your query. Now what is the basic difference between SQL and Access? The first thing about the basically MS Microsoft Office and SQL is that SQL is not an application. Like MS Access is your application, like MS Word, PowerPoint, you have, these are the application, but SQL is not an application, rather it is a programming language. So there is a difference, one is language and one is your program or an application. Next one is yours query using SQL. So before starting the queries using SQL, I want you all to go through some of the basic points of what you have to keep in your mind while running an SQL query. See, first of all, सबसे पहले अगर आप अपनी MS Access की फाइल ओपन करते हैं और आपको ये कंटेंट शो होता है, सिक्योरिटी वार्निंग, सम एक्टिव कंटेंट हैज़ बिन डिसेबल्ड, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स, तो यू हैव टू क्लिक ऑन एनेबल कंटेंट. ये आप ज़रूर करिएगा. इसके करने के बाद ही आप अपने MS Access में वर्क करना स्टार्ट कीजिएगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट थिंग इज योर्स आफ्टर दिस, SQL में
हमें दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लास्ट टेबल बनाई थी उसमें एम्प्लॉय स्पेस कोड लिखा था, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय स्पेस कोड ना देख के जो बीच का स्पेस है उसको कवर करेंगे, और उसको कवर करने के लिए आप डिफरेंट साइंस यूज़ कर सकते हैं। हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे बिकॉज अंडरस्कोर का कोई मीनिंग नहीं है और वो एक एज एन स्पेस फिलर यूज़ होगा। ओके, सो इन केस देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स दैट इज टू बी कवर्ड बाय अंडरस्कोर साइन हेयर। एग्जाम्पल्स में देखिए, एम्प्लॉय स्पेस कोड इनकरेक्ट होगा आपका एसक्यूएल क्वेरी में, बट एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड करेक्ट है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, ई अंडरस्कोर ई स्पेस नेम इज इनकरेक्ट, ई अंडरस्कोर नेम इज करेक्ट। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग द space between two different words, that is to be covered by underscore. Next one is your semicolon. Semicolon, as you can see, when I just started the SQL query, तो यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखे, select and colon. Select is for just starting the query and colon is for ending a particular query. ओके, सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सेमी कॉलन इज लाइक अ क्लोजर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी और इट इज़ मैंडेटरी टू यूज वंस यू आर फिनिश्ड विद योर क्वेरी। नेक्स्ट, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एसक्यूएल क्वेरी में। इन केस यू डिडंट यूज इट प्रॉपरली तो आपका एरर शो होगा, और अगर वो एरर शो होता है तो डोंट वरी, आपको वो एरर रिमूव करना है। जो भी उस एरर डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगा उस एरर को आप रिमूव कीजिए और आप अपनी क्वेरी को रन करने के लिए रेडी रहेंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी क्वेरी रन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज योर पहले क्वेरी। सबसे पहले जो क्वेरी है दैट इज टू रिट्रीव ऑल कॉलम्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ऑल कॉलम्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल विदाउट कंडीशन और विदाउट कंडीशन एंड विद कंडीशन। पहले इसका मीनिंग समझिए। टू रिट्रीव ऑल कॉलम्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। सी, ये आपकी टेबल है, इस टेबल में ये सारे रिकॉर्ड हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक पे एंड स्पेशल अलाउंस। तो ये जो आपका स्टाफ 001 है इसके लिए सारे रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो बिना कंडीशन दिए, इन केस आपने कंडीशन नहीं दी है और उसके साथ आप चाहते हैं कि आपके सारे कॉलम्स आ जाएं ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन में क्या है, सी आपको मैंने पहले बताया, आप चार चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। अगर नहीं बताया है तो आप इसमें चार चीज़ें यूज़ करेंगे। सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। बेसिकली सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर, ये मैं चीज़ें आपको भी जब क्वेरी रन करेंगे तब मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ये क्वेरी रन करने के लिए एग्जाम्पल है, क्वेरी कैसे रन होगी वो मैं बताऊंगी। अभी आप ये समझिए, टू रिट्रीव, हमारी पहली क्वेरी है टू रिट्रीव ऑल कॉलम्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेरी। ऑल फील्ड्स, देखिए आपके लिए मैंने ये क्वेरी रन की हुई है पहले डिज़ाइन, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसको करना कैसे है। सी, मैंने क्या किया है, ऑल फील्ड विदाउट कंडीशन। तो ये हमारी सबसे पहली कंडीशन है कि हमें सारी फील्ड्स चाहिए और हमें आपके एम्प्लॉय टेबल में कोई कंडीशन नहीं लगानी। कंडीशन का मतलब ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ एम वाले स्टाफ का नेम आए या सिर्फ उनका नेम आए जिनकी बेसिक सैलरी 2000 से या 50,000 से ज़्यादा है। मीन्स आई एम नॉट पुटिंग एनी कंडीशन, आई एम जस्ट राइटिंग कि आपका क्या कंटेंट है और वो किस टेबल से आएगा। तो यहाँ पे समझिए आपके पास चार चीज़ें रहती हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये तीन चीज़ें और लास्ट का कॉलन, ये चार चीज़ें होती हैं आपकी पर्टिकुलर टेबल में। सेलेक्ट का मतलब है आपको कौन कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। अगर आपने सेलेक्ट स्टार यूज़ किया है इसका मतलब आपकी सारी फील्ड्स आएंगी। ओके, जैसे एम्प्लॉय में सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस। अगर आपको ये सारी फील्ड्स चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार।
और अगर आपको सारी फील्ड्स नहीं चाहिए उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेरी रन करेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये करिए कि आपको सारी फील्ड्स चाहिए और किस टेबल से चाहिए, तो जिस टेबल का नेम देंगे उस टेबल का नेम आएगा। जैसे इसमें मेरे पास एक ही टेबल है तो यहाँ पे मैंने एक टेबल का नेम दिया है फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल है तो उस केस में आप उस दूसरी टेबल का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल हमारे यहाँ पे एम्प्लॉई है और दूसरी टेबल हमारे होती है हमारे पास एक्स एम्प्लॉयज़। ओके, तो यहाँ पे एक्स एम्प्लॉयज़ या पास्ट एम्प्लॉयज़, तो आपको जो डेटा चाहिए सेलेक्ट में से, सेलेक्ट में आप अभी हम सारी कंडीशंस वाला कर रहे हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, इट मीन्स ऑल द फील्ड्स आर सेलेक्टेड। कौन सी टेबल से? फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपके पास एक और टेबल होती जिसका नेम होता पास्ट एम्प्लॉय और आपको उस टेबल से कोई डेटा चाहिए तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉय एंड कॉलन। ओके, सो ये आपकी पहली चीज़ हो गई। अब इसको रन कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्रिएट पे जाएंगे, देन आप क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे, शो टेबल को क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करके अपना एसक्यूएल व्यू ओपन करेंगे। सेलेक्ट और कॉलन ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। सेलेक्ट में मैंने आपको बताया तो सेलेक्ट स्पेस स्टार, सेलेक्ट के बाद आप कर्सर लाएंगे, स्पेस देके स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट स्टार के बाद अब आपको देना है फ्रॉम, आपको टाइप करना होगा फ्रॉम। फ्रॉम कौन सी टेबल है आपकी? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल है और इसको रन करेंगे तो ये देखिए आपने स्टार लिखा था तो आपकी क्वेरी रन होके आ गई है। सो इस केस में आप देखिए आपने क्वेरी रन करी, आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था इसमें स्टार और सेलेक्ट और कॉलन आपका लिखा हुआ आया था तो आपने क्या लिखा इसमें? सेलेक्ट प्लस स्टार स्पेस स्टार। अगर आप स्पेस नहीं भी देंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेलेक्ट स्टार और सेलेक्ट स्पेस स्टार बोथ करेक्ट है। देन फ्रॉम स्पेस एम्प्लॉय कॉलन। इसके बाद आप क्वेरी को रन कर देंगे। जैसे ही आप क्वेरी को रन करेंगे तो ये हमारे पास टेबल आ गई। अब इसको आप क्लोज जब करेंगे तो ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा, तो आप इसको सेव करने के लिए क्या नेम देंगे? ऑल फील्ड विदाउट कंडीशन। ठीक है, जो मैंने यहाँ नेम दिया हुआ है ऑलरेडी वही नेम देंगे आप, ऑल फील्ड विदाउट condition. Okay, so now this is your very first query, so I'm not saving this query. Now let's proceed with another query. Okay, another query is your all field condition. all field condition का हम डिज़ाइन देखें। देखिए इसमें मैंने जो आपका एसक्यूएल व्यू है इसमें देखिए आपने क्या यूज़ किया है? सेलेक्ट स्टार यानी ऑल फील्ड्स आएंगी। फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम मैंने आपको बताया फ्रॉम टेबल नेम के लिए यूज़ होता है। जिस टेबल से या जिस क्वेरी से आपको ये चाहिए उसका नेम आप यहाँ पे देंगे। ओके, नेक्स्ट वेयर डिपार्टमेंट, ये हमने कंडीशन लगाई। तो वेयर जो आपका यूज़ होता है दैट इज़ फॉर कंडीशन, आपकी जो कंडीशन है। अब मैं चाहती हूँ कि आपकी सिलेक्ट टेबल की सारी फील्ड्स आए। कौन सी टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से, बट जो उसमें डेटा आए वो सिर्फ उन्हीं लोगों का आए जो सेल्स डिपार्टमेंट से डील करते हैं। राइट, तो मैं इसकी क्वेरी आपको दिखाती हूँ बिकॉज यहाँ पे फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। सी विद कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे मैंने आपको दिया जो क्वेरी आपने रन करी, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट से इससे सारी रिलेटेड क्वेरी आ जाए। अब हम इस क्वेरी को कैसे रन करेंगे? ये क्वेरी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैंने ऑलरेडी कर रखी है बट हम फिर से करेंगे। सी क्रिएट, कहाँ पे जाएंगे? क्वेरी डिज़ाइन, शो टेबल को क्लोज करेंगे। देन यहाँ पे राइट क्लिक करके यह कर्सर से देन एसक्यूएल व्यू करेंगे। जैसे ही आपका एसक्यूएल व्यू आ जाएगा आपका सिलेक्ट आ जाएगा। अब सिलेक्ट में क्या आ जाएगा आपका? स्टार, सेलेक्ट आपने स्टार दबाया। फ्रॉम कौन सी टेबल है आपकी? एम्प्लॉय। ओके, वेयर, वेयर में क्या कंडीशन दी है? जो मैंने एग्जीक्यूट की है क्वेरी, उस क्वेरी में मैंने दी है आपकी कि जिनका डिपार्टमेंट सेल से है।
आप उसको सेल्स भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सेल्स करके ही बता रही हूँ। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू के जस्ट बाद इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन करेंगे और उसमें लिखेंगे सेल्स। सेल्स की स्पेलिंग एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके एम्प्लॉय टेबल में है, CSALES। अगर आपके वहाँ पे टेबल में SALES नहीं है और आपने लिखा है सेल और टेबल में सेल्स है तो क्वेरी आपकी रन नहीं होगी। तो इसके बाद आप जाएंगे डिज़ाइन में और क्वेरी रन कर देंगे। सी, आपके पास सिर्फ सेल्स के एम्प्लॉयज़ का डेटा आया है, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने डुप्लीकेशन किया था कुछ फंक्शंस को समझने के लिए, जो मल्टी लेवल सॉर्ट, सिंगल लेवल सॉर्ट और सम, इफ, काउंट का फंक्शन था। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रिपीट हुआ है, तो ये रिपीट नहीं है, ये हमने इंटेंशनली रिपीट किया था। तो इसको आप जब सेव करने जाएंगे तो ये फिर से आपसे पूछेगा। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में मेंशन किया था, वेयर एम्प्लॉय नेम इज़ ए, तो अब मेरे को चाहिए सिर्फ उन लोगों का डेटा जहाँ पे एम्प्लॉय नेम ए है। तो एम्प्लॉय नेम आप देखिए, एम्प्लॉय टेबल में आपने क्या यूज़ किया है, आपने यूज़ किया है E_name। ओके, E_name। अगर आपने टेबल क्रिएट करने से पहले यहाँ पे कोई अंडरस्कोर मेंशन नहीं था और आपने जो क्वेरी रन की थी वो डिज़ाइन व्यू में रन की थी, तो डोंट गेट पैनिक, आप इसको यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। जो आपकी टेबल है उसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कीजिए और यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए स्पेस है, एम्प्लॉय कोड स्पेस, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, स्पेस रिमूव करके अंडरस्कोर लगा दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी आपके डबल वर्ड्स हैं उन सब के बीच में आप अंडरस्कोर लगा देंगे, तो योर टेबल विल बी ओके टू रन अ SQL क्वेरी। सो अब हम अपनी टेबल पे वापस आते हैं कि हमारी टेबल में हमारा नेम क्या है, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के लिए हमने यूज़ किया E_name, तो हमारी क्वेरी में भी वही चीज़ होनी चाहिए, E_name। तो E_name, आपने E_name लिख दिया। अब किसका डेटा चाहिए आपको, जिनका नेम A से स्टार्ट होता है। ओके, तो राइट A। अब इस क्वेरी को आप रन करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाइए, क्वेरी को रन कीजिए। सी, आपके पास सिर्फ उन्हीं का डेटा आया है जिनका नेम A से स्टार्ट है। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखिए सारी फील्ड्स आई हैं, बट विद अ कंडीशन कि हमारे को सिर्फ A एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, राइट। इसको आप सेव करेंगे, तो आप सेव कर लीजिए इस क्वेरी को, ऑल फील्ड्स विद कंडीशन। पहले आपने किया था ऑल फील्ड्स विदाउट कंडीशन, अब आपने किया है ऑल फील्ड्स विद कंडीशन। ओके, सो जैसे ही आप ये क्वेरी में सेव करेंगे, मैं सेव नहीं कर रही हूँ क्वेरीज बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपके लिए सारी क्वेरीज सॉल्व की हुई हैं। ओके, सो टू अवॉइड डुप्लीकेशन आई एम नॉट सेविंग दी क्वेरी, बट मैं सारी क्वेरी आपको रन करके दिखा रही हूँ, सो प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज आफ्टर दिस, टू रिट्रीव सिलेक्टेड कॉलम्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ ही रिकॉर्ड्स आएँ, सारी हेडिंग्स ना आएँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अभी सारी हेडिंग्स हम ले रहे थे, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस, तो जिस भी पर्सन का डेटा आ रहा था उसमें सारी फील्ड्स आ रही थी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उनका नेम आए जिनका जो एग्जीक्यूशन है, जो सिर्फ डील कर रहे हैं इससे, एम्प्लॉय कोड और सिर्फ डिपार्टमेंट। मैं 2 फील्ड चाहती हूँ सारे एम्प्लॉयज़ की, कोई कंडीशन नहीं है, सारे एम्प्लॉयज़ की चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ, सिर्फ 2 फील्ड चाहती हूँ मैं, एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट जैसे ही आप देखेंगे, देखिए SQL व्यू में सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। वेयर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने फ्यू फील्ड्स निकाली हैं विदाउट कंडीशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन में क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे टेबल को, राइट क्लिक करके SQL व्यू में ओपन करेंगे। जैसे ही करेंगे तो सेलेक्ट आ जाएगा हमारा, और जैसे ही सेलेक्ट आएगा तो अब हमें क्या रन करना है, हमें फ्यू फील्ड्स चाहिए। क्वेश्चन में देखिए, आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको क्या क्वेरी चाहिए। ये तो आपका आंसर है विदाउट कंडीशन में, कि ये हम टाइप करेंगे SQL व्यू में तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट, अभी हम क्या करने जा रहे हैं,
सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम विच टेबल एम्प्लॉय। सिर्फ हमें एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट जैसा आपका एम्प्लॉय कोड वहाँ पे टाइप है सेम एग्जैक्टली वही टाइप करेंगे। हमें एम्प्लॉय कोड चाहिए, देन कॉमा, देन स्पेस एंड डिपार्टमेंट। ओके, अब एंटर कीजिए। कौन से? फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ पे? एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, दो चीज़ें आई। अब हमने क्वेरी रन करी तो देखिए सिर्फ एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट नेम आया है, राइट। तो ये हमारी फ्यू फील्ड विदाउट कंडीशन हो गई। अब ये देखिए, इसी में अगर आपको कंडीशन लगानी है, कंडीशन क्या लगानी है आपको कि आपको एम्प्लॉय कोड भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, बेसिक पे और एम्प्लॉय नेम, 4 फील्ड चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय नेम वही चाहिए जो ए से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट हमने लिखा हुआ था, हमें बेसिक पे और एम्प्लॉय नेम भी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में आप डेटा लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आपके टेबल में वो डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय कोड फर्स्ट लिखा है तो वो फर्स्ट आया रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस विच यू हैव टाइप्ड इन दी टेबल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट, बेसिक पे, और बेसिक पे के बाद था एम्प्लॉय नेम, राइट। सी, बेसिक पे के बाद एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे हमने, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आपने क्या लिखा है तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। एम्प्लॉय नेम के लिए आपने E_नेम यूज़ किया है, ओके। तो E_नेम, देन फ्रॉम विच टेबल एम्प्लॉय। अब इसमें कंडीशन है तो इसलिए हम वेयर का भी यूज़ करेंगे। वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू ए को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना है, ओके। अब ये देखिए रन करते हैं, क्वेरी रन हो गई, हमारे पास उनका डिटेल आ गया, एम्प्लॉय को, डिपार्टमेंट, बेसिक पे, एम्प्लॉय नेम जिसका ए से नेम है। अब मैं आपको इसमें एक एरर करके दिखाती हूँ। सी, अब आपने देखिए कॉलन को क्लोज नहीं किया है, क्वेरी रन करी आपने, क्वेरी रन हो गई। इन केस आप में ये क्वेरी रन हो जा रही है देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो रही तो आप में उसमें एरर है, ओके। ये MS ऑफिस सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। अब एक और एरर आपको मैं शो करके दिखा रही हूँ जो रन नहीं होगा। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास आप रिमूव कर दीजिए, ओके। अब आपने रिमूव कर दिया, अब क्वेरी रन कीजिए। सी, एंटर पैरामीटर वैल्यू, इट मीन्स इसके पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड सेमी कॉलन। एक और एरर देखिए, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड में से स्पेस हटा दिया, ओके। नाउ रन। सी, सिंटेक्स एरर, मिसिंग ऑपरेटर इन क्वेरी एक्सप्रेशन एम्प्लॉय कोड। वो स्पेसिफिकली नेम आपको बताएगा कि एरर कहाँ पे है। अब एम्प्लॉय कोड में एरर है तो आप इसको ओके करके यहाँ से अंडरस्कोर करेंगे, ओके। तो ये आपका एम्प्लॉय कोड एरर यहाँ से रिमूव करके बताएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर एरर। आप यहाँ पे बेसिक पे में और एम्प्लॉय नेम में कॉमा मत दीजिए। नाउ क्वेरी रन। सी, सिंटेक्स एरर, मिसिंग ऑपरेटर इन क्वेरी एक्सप्रेशन बेसिक पे एंड एम्प्लॉय नेम। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे कोई एरर है और आप उस एरर को अब रिमूव कीजिए। और जैसे ही आप रिमूव करके क्वेरी रन करेंगे अभी भी देखिए मिसिंग ऑपरेटर आ रहा है। मैंने कॉलन यूज़ किया है, सेमी कॉलन नहीं, तो यह यहाँ पे एरर शो कर रहे थे कि ए के बाद आपने कॉलन यूज़ किया है, तो मुझे वो भी एरर रिमूव करना है, ओके। सी, कॉलन की जगह सेमी कॉलन। अब क्वेरी रन, तो ऐसे आप एरर्स अपने रिमूव कर सकते हैं। सो ये आपकी 4 क्वेरीज हो गई। तो इस वाले एक्सेस में हमने क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू क्रिएट एन SQL क्वेरी, हाउ टू ओपन अ SQL व्यू टू रन अ क्वेरी इन SQL। फिर हमने किया आपकी ऑल फील्ड्स विदाउट कंडीशन, आपको रिट्रीव करनी है सारी फील्ड्स विदाउट कंडीशन, ओके। Then to retrieve all columns of data records from a table with or without condition. Next हमने क्या, to retrieve columns of data records with or without condition, right. Next है हमारा renaming the fields.
use of and or command. Next one is your use of like command और use of not select from employee command. तो ये 4 क्वेरी जो आपकी रह जा रही हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, एंड in next class your SQL will be over and we will start with forms and